Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss section formula rule for exercise 7.2. Only internally division is in your course, externally is not. So when a line segment is internally divided in two parts, how you can derive the section formula? Let's see, student. Suppose this is the line segment A and B, and P be any point on the line segment AB. Coordinate of P is x comma y and A is x1 comma y1 and B is x2 comma y2, and P divides AB into ratio M1 and M2. Then what is the coordinates of x and y? How you can derive? Let's see, students. Firstly, we draw a diagram. This is x-axis, x dash, y-axis, and y dash. This is origin. Suppose AB be a line and P be any point is situated on AB whose coordinates is x comma y, and coordinates of A is x1 comma y1, x1 comma y1, and B is x2 comma y2, and the ratio is M1 and this is M. How you can derive? Firstly, meet the point from x-axis. This is the perpendicular line from the x-axis. Suppose this is O, R, S, and if we draw a perpendicular from x-axis and y-axis, draw a perpendicular parallel line of x-axis and draw another parallel line of x-axis. This point is suppose Q and this is C, and this is P point. So here two triangles are developed, student. So firstly we have to prove both are similar triangle. Already you know that, student, already you have been studying triangles. When two triangles are similar, then corresponding angles are equal and corresponding sides are in proportion. So firstly we take two triangles to prove both are similar. Next thing is that how you can prove both are similar, student. So already you know that this angle is equal to that angle, 90-degree angle, and both are situated on same line. So this angle is equal to that angle, corresponding angles. So here angle similarity
you can say that both triangle are similar. So firstly we take two triangles. In triangle APQ and triangle PBC, angle Q is equal to angle C, each 90 degree, and angle P is equal to angle B, corresponding angle. Already student, you know that when two parallel lines intersected by a transversal line, then corresponding angles are equal, alternate angles are equal, and vertically opposite angles are equal. Already you know that. So this is the parallel line and this. आप इसको भी इक्वल कर सकते थे. So that triangle APQ is similar to triangle PBC by angle similarity. By angle similarity, you can say that both triangles are similar. Then what? PA by PB, corresponding sides, PA by PB is equal to what? AQ by PC, AQ by PC, and then what? Then PQ by BC. By BC by CPST, corresponding sides are in proportion. Already student, you know that PA by PB is equal to what? M1 upon M2. Next thing is that how you can find AQ student. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये क्या है? x है टोटल, यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये x1 है. If you want to find this distance, what can you do? x इस टोटल में से इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x माइनस x1, x माइनस x1. सो यहाँ पर डिस्टेंस हो गई x माइनस x1. और PC, इफ यू वांट टू फाइंड PC को फाइंड करना चाहते हैं, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस टोटल आपकी क्या है? x2 है. ये टोटल डिस्टेंस x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x2 माइनस x, x2 माइनस x हो जाएगा. इस टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगी स्टूडेंट x2 माइनस x. सिमिलरली यू कैन फाइंड व्हाट? PQ. आप PQ फाइंड करना चाहते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस है आपकी क्या? y. टोटल डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है. तो आप इसको फाइंड करना चाहते हैं
तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इस टोटल में से इतना हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, तो y माइनस y1 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस y माइनस y1 हो जाएगी। और BC के लिए ये टोटल डिस्टेंस है आपकी y2 और ये डिस्टेंस है y, तो इसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो y2 माइनस y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y। अब इफ यू वांट टू फाइंड x कोऑर्डिनेट, इसको हम सपोज कर लेंगे ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, और ये क्या है थर्ड है। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो ऑन कंपेयरिंग रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी गेट, m1 by m2 is equal to x minus x1 upon x2 minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। अब क्या करिए स्टूडेंट, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू m2 x प्लस m1 x। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आप x कॉमन लेंगे, तो यहां से बचेगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 एंड x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 लिखिए या m2 प्लस m1 लिखिए। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया स्टूडेंट। x कोऑर्डिनेट व्हेन अ लाइन सेगमेंट, when a point P is divide the line segment AB in ratio m1 and m2, what is the coordinate of x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। Then after on comparing first and third ratio, first and third ratio, we get what we get, m1 by m2 is equal to y minus y1 upon y2 minus y। Cross multiplied them, m1 y2 minus m1 y is equal to m2 y minus m2 y1। ट्रांसफर कर दीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 is equal to m1 y प्लस m2y और यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1। तो y इज इक्वल टू, यू कैन राइट व्हाट, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस इज द formula for section, this formula is known as, this formula is known as section formula, section formula for internal division, internal डिवीजन। हम इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये फार्मूला हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई
you can apply the question and solve it. अब इसके कुछ केसेज हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं. सपोज P divides AB in same ratio. Suppose 1:1 or m/m. Then what can you do? Let's see. Special cases. Case number first. If P divides AB in same ratio, or P is the midpoint of AB और ये इंटरनली डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट, इंटरनली. देन x इज इक्वल टू व्हाट? अब इसको आप क्या करेंगे, सेम रेशियो ले लेंगे. तो दोनों को अगर सेम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2. अब इन दोनों को अगर आप सेम ले लेते हैं, here m1 इज इक्वल टू m2, देन x इज इक्वल टू व्हाट, m1 x2 प्लस m1 x1 अपान m1 प्लस m1. या ये मिड पॉइंट है, सपोज कर लीजिए. अगर ये मिड पॉइंट है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट. देन अब ये 1:1 में डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बात है, x इज इक्वल टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2. सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई. सेकेंड केस है स्टूडेंट, केस नंबर सेकेंड. If P divides AP in ratio k:1, यदि रेशियो गिवन नहीं है स्टूडेंट तो हम k:1 सपोज करते हैं, तो क्या होगा फार्मूला, ये आपका m1 हो जाएगा और ये आपका m2 हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2. तो x इज इक्वल टू kx2 प्लस 1 इंटू x1 अपान k प्लस 1. इट मीन्स x इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 हो जाएगा. यदि रेशियो गिवन नहीं है स्टूडेंट तो हम k:1 ऑलरेडी मानते हैं. एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2. तो y इज इक्वल टू ky2 प्लस y1 अपान k प्लस 1. ये आपके दो केस हो गए स्टूडेंट. नेक्स्ट थिंग है कि हाउ यू कैन अप्लाई द फार्मूला. तो आइए देखते हैं.
एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट we have taken as a example. Find the coordinates of the point which divides join -1, 7, 4, -3 in the ratio 2:3. 2 पॉइंट गिवन है स्टूडेंट। सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 7 and second coordinate is 4, -3. P भी एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट है जो क्या कर रहा है 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका 2:3 है। इट मीन्स व्हाट, दिस इज द वैल्यू, और इंटरनली डिवीजन है, ये अंडरस्टूड है, इंटरनली डिवीजन भी कह रहा है। x1 y1 हो गया ये, और ये आपका क्या हो जाएगा x2, और ये y2 हो जाएगा, और ये m1 होगा रेशियो, और ये m2 होगा। तो देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, ये आपका m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ये आपको फाइंड करना है। Find the coordinates of P. So let the coordinate of P be x, y. तो इंटरनली डिवीजन हम करेंगे, इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नली में स्टूडेंट माइनस हो जाता है और कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। पुट कर दीजिए, m1 क्या है 2 है, x2 क्या है 4 है, प्लस m2 क्या है 3 है, x1 क्या है -1 है, अपान 2 प्लस 3। व्हाट वी गेट 8 - 3 अपान 5, 5 अपान 5 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई, एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और इंटू y1 की वैल्यू है 7 अपान 2 प्लस 3, -6 प्लस 21/5, इट मीन्स व्हाट 15/5, 5 3 या 15, यानी कि y इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, which is the required coordinates of P x, y is equal to what 1, 3। This is your answer, student।